Hello students, welcome back to our channel. Please subscribe our channel and press the bell icon. Students, ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ 3rd ਹੈ NCERT ਮੈਥ 10th ਕਲਾਸ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 2 ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर। तो देखो जी जो अपना 3rd चैप्टर है इसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसकी एक्सरसाइज 3.1 है, आप इसमें सॉल्व करांगे। तो इस स्टूडेंट्स की है पहले तुम अपने टैक्सट बुक्स नाल ओपन कर लो ताकि तुहानूं ईजिली समझ आ जाए। तो देखो फर्स्ट सम की कहना गा, कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। कहना आफ्ताब tells his daughter, आफ्ताब अपनी लड़की नूं कहंदा है, ठीक है, 7 years ago यानी कि अज तो 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then। कहना मैं तेरी उम्र 7 साल पहले जिन्नी सीगी मैं उसका 7 गुणा सीगा। कहना भाव जे लड़की की एज 1 साल सी तो आफ्ताब की उम्र उस टाइम 7 साल होगी। ये जस्ट तुहानूं एग्जाम्पल समझाने वास्ते दस रहा मैं। तो उन्होंने कहा गा भी 7 साल पहले मेरी उम्र तेरी उम्र का 7 गुणा सी। अपनी लड़की नूं कहंदा आफ्ताब। आल्सो 3 years from now ते अज तो 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? आफ्ताब, उसका फादर। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically एंड ग्राफिकली। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ algebraically ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.1। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੈਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੈਟ present is of आफ्ताब। आफ्ताब ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? x। ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡਾਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਹਿਸ ਆਫ ਹਿਸ ਡਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 22। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 years ago। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ आफ्ताब ਦੀ ਏਜ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? x ਮਾਈਨਸ 7। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਏਜ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਸੇਮ
देखो जे ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 7 ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ क्योंकि दोहां की एज 7 साल पहले की गल हो रही है। तो हुण देखो मैं लिख भी देना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 7 ईयर्स अगो तो 7 साल पहले की सीगा 7 साल पहले देखो अवताब की एज की है एक्स मैन 7 हो गई है लड़की की एज उसकी वाई मैन 7 हो गई है। तो हुण इन्होंने की कहा सीगा कहना आई वॉज 7 टाइम्स देखो ये कहना है आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर दैन तो कहना मैं 7 गुणा एज का सीगा उस टाइम ते मतलब कि लड़की की जी एज सीगी वो जे एक्स सीगी तो उसके फादर की भाव अवताब की एज 7x सीगी। तो हुण देखो तुहाडे कोल की है ये एज आ गई है कि अवताब की 7 साल पहले ये आ गई लड़की की ठीक है। तो आप इन्होंने देखो मैं इतनी इक्वल का साइन पा रहा गा ठीक है पर इक्वल ये किद्दां होनी आ क्योंकि अवताब वड्डा गा ठीक है तो उस जी लड़की है वो छोटी है। पर देखो भी जे उन्हें कहा गा भी 7 टाइम्स सीगा तो जे मैं लड़की की एज नूं 7 नाल मल्टीप्लाई कर देंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना बिल्कुल हो जाएंगे। देखो ये अवताब की एज आ गई 7 साल पहले ये भी फिर अवताब की एज ही बन गई क्योंकि लड़की की उम्र कितनी सीगी बाई मैन 7 सीगी जो उसमें आप 7 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो फिर कादी बन जूगी अवताब की ही तो बन जूगी यही तो कह रहे हैं स्टेटमेंट के विच। सो हुण आप इत्थे इक्वल साइन नूं दे नाल इसनूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हुण आपां की है इस सवाल नूं इस स्टेटमेंट नूं आपां अगे लैके चलांगे। देखो इत्थे मेरे कोल की आ जाएगा x माइनस 7 देखो जिहड़ा मेन फोकस होना चाहिए तुहाडा स्टेटमेंट ते आ देखो जे स्टेटमेंट सही बन गई है तो फिर इस सवाल दे विच कुछ भी नहीं है बड़ा आसानी नाल तुसीं कर सकते हो। इत्थे आ जाएगा जी 7 बाई माइनस 7 7 जा 49 ओके स्टूडेंट्स। तो हुण अपने कोल की आ गया आप जिहड़े वेरीएबल्स दे नाल अपने कोल टर्म्स ने उन्होंने आप एक साइड ले लेंगे। देखो इधर मेरे को आ गया x 7 बाई इधर आके माइनस हो जाएगा इधर अपने को है माइनस दे 49 है ये 7 इधर अपने को करेगा माइनस है इधर जाके प्लस का चला जाएगा। तो हम अपने को बन जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस दे 49 प्लस दे 7 तो की आएगा माइनस दे 42। तो स्टूडेंट्स देखो इसनों आपां की एक अलजैब्रिक फॉर्म दे विच आपां इसनों शो करता है ठीक है ये इसकी एक अलजैब्रिक फॉर्म बन गई अपने कोल ते इसनों आपां बोलांगे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन अगे यूज होएगा ठीक है। तो इत्थे तक तुहानूं समझ आ गया होगा। तो हुण आपां की है अगली जी स्टेटमेंट दी हुई है अकॉर्डिंग टू दी सेकंड कंडीशन हाँ जी स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू सैकेंड कंडीशन की कहती है देखो फिर आप उसनूं बड़े ध्यान नाल पढ़ना गा। तो कहना गा 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब कि अज तो 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी मैं तेरी एज का 3 गुणा होवांगा। कहने की भाव है देखो अज जे तुहाडी एज 15 ईयर्स है ठीक है तो आफ्टर 3 ईयर्स तुहाडी एज की होएगी ओबवियसली 18 ईयर्स होएगी। तो चाहे तुहाडी एज हो चाहे मेरी चाहे किसी की भी एज हो तो उस ईयर्स ने ठीक है 3 ईयर्स ने वो प्लस होंगे ही होंगे। सो आफ्टर 3 ईयर्स देखो अज उन्होंने एज कितनी है एक्स एंड वाई है देखो सेम ठीक है। जैसे मैं लिख भी देना है आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल बाद तो 3 साल बाद देखो हुण सिंपल जी गल है दोहां दी एज दे विच 3 प्लस होना है बिल्कुल बाई दे विच भी 3 प्लस होना है पर देखो वाले ये इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ओबवियसली है लड़की छोटी है उसकी डॉटर है वो ठीक है एंड फादर उसकी एज वड्डी है इसनों आप इक्वल नहीं कह सकते। फिर आप इक्वल किद्दां करांगे देखो की कहंदा गा कहना आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी देखो कहना मेरी एज भाव की पाप की एज हो गई है ठीक है तुहाडी एज का 3 गुना होएगी आओ लड़की की एज होगी तो जे नूं मैं 3 दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगा तो फिर ये की हो जाएगी ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगियां।
तो फिर हुण आपां कह सकते हैं इसनूं आपां इक्वल के साइन नाल रिप्रजेंट कर सकते हैं। तो हुण मेरे कोल की आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। तो हुण मेरे कोल की आ गया, हुण फिर आप वही काम करना है x 3y इधर आके की हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे 9 ये ठीक है ए प्लस ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगे आप की है हुण आगे अपने को आ गया 3y इक्वल टू 6। हाँ जी हुण आपां की है जिहड़ियां अपने इक्वेशनस बन चुकियां ने उन्होंने आपां सिंपलीफाई करके उन्होंने वैल्यू पुट करांगे किसी एक वेरीएबल की। लाइक अपने को इक्वेशनस बनियां सी पहलां आपां नोट डाउन कर लैने आ -7y इक्वल टू -42 एंड सैकेंड अपने को x -3y इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स आप पहला की है इसनों थोड़ा सिंपलीफाई कर लेने उस तो बाद वैल्यू पुट करांगे। सिंपलीफाई करने वास्ते आप एक वेरीएबल एक साइड रख लेने जिदा मैं की है 7y ਨੂੰ सपोज कर लो, चलो x ਨੂੰ मैं रख लेना ठीक है x इक्वल टू -42 प्लस दे 7y एंड दूसरी साइड की हो जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस 3y ये हो जाएगा। तो हुण की है आप एक बॉक्स बनाना है दोहें साइड, इस बॉक्स के आप की है वैल्यूज़ नूं पुट अप करांगे। ये मेरे को x हो गई है, यह y हो गई है, मेरे को ये x हो गई है, यह y हो गई है। मैं बेचारे लाइन भी ला देना थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए इन्हां दा। तो हुण की है पहले मैं की है x की वैल्यू पुट करांगे। x की वैल्यू आप कोई भी पुट कर लो, सपोज कर लो आप x इक्वल टू x नहीं सॉरी y की वैल्यू पुट करो। तो y की वैल्यू जेकर आप देखो सपोज कर लो आप पुट अप करते हैं लाइक 42 आ गया तो आप 6 ही पुट कर लेने मान लो y वैन y इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स y इक्वल टू 6 तो x की होएगी x इक्वल टू -42 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6। तो y की जगह 6 पुट करता तो मेरे को आ जाएगा x इक्वल टू -42 प्लस 42 ये कैंसल हो जाएंगे तो x इक्वल टू कितनी आ जाएगी 0, y कितनी आ जाएगी 6 तो फिर x कितनी आ जाएगी 0 एंड सेम फिर अपने को की है हुण फिर आप y की कोई वैल्यू पुट करांगे। तो हुण आप मान लो y इक्वल टू 7 पुट कर लो ठीक है, सपोज कर लो आप वैन y इक्वल टू 7 ठीक है 7 पुट कर लिया आप y, x की वैल्यू आएगी हम आप देखते हैं x इक्वल टू -42 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 तो फिर x इक्वल टू की आएगी -42 प्लस दे 49 तो फिर x की आ जाएगी अपने को प्लस दे 7 तो अपने को की आ जाएगा x आप जी y आप 7 पुट करते हैं तो अपने को x भी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओके तो हुण आप सेम प्रोसैस की है दूसरी पासे करांगे। दूसरी साइड अपने को हो जाएगा देखो आप हुण y की वैल्यू वैन y इक्वल टू y की आप कोई वैल्यू पुट कर दो तो 6 देखो जी आप 1 ही पुट करते हैं y इक्वल टू 1 पुट कर देने सपोज कर लो देखो तुम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो ठीक है, तो इतने कोई बंदिश नहीं हैगी। तो हुण अपने को की है ग्राफ अपना सेम ही बनेगा। तो हुण अपने को की आ गया x इक्वल टू 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 x इक्वल टू 6 प्लस 3 x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। जे आप जी x y है उसमें आप 1 पुट करते हैं तो x कितनी आएगी 9। हुण आप की है y इक्वल टू 0 पुट कर दो ठीक है, 0 पुट अप की आप तो फिर अपने को की आएगा x इक्वल टू 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 x इक्वल टू तो फिर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो जी आप y पुट अप कर रहे हैं 0 तो x की आ जाएगी 6।
तो इस ढंग ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਅਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 8 9 -8 -9, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਲੱਸ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ x = 0 ਬਾਈ 6, x 0 ਆ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆ 6, ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0 and 6। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਥ ਆਰ 7, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 7 ਹੋ ਗਈ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ 7 ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ 7 ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਥ ਆਰ 7 x and y। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ x - 42 + 7y, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, x 9 ਹੈ ਅਤੇ y ਕਿੰਨੀ ਆ 1, x ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9, ਠੀਕ ਹੈ, x 9 ਆ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ y ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਆ 1, ਇਹ 22 ਹੋ ਗਈ ਆ, x9 ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗੀ 8 and 9, ਇਹ 9 ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ 1 ਹੋ ਗਈ ਆ, ਭਾਵ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 and 9। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 and 6, x ਹੋ ਜਾਏਗੀ 6, x ਹੋ ਜਾਏਗੀ 6 ਐਂਡ y ਹੋ ਜਾਏਗੀ 0, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 0 and 6। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ +3y। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸਮ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ਲੀ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸਮ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਐਂਡ ਥਰਡ ਸਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਮ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1300. Represents the situation algebraically and geometrically. ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਐਂਡ 6 ਬਾਲਸ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 3900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅਨਦਰ ਬੈਟ, ਬਾਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਬੈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਟ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਮੋਰ ਬਾਲਸ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ 1300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਲੈਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਆ ਬੈਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x,
x मान लिया। तो अपने को नैक्सट आपां की है अ बॉल की कॉस्ट की मनांगे बाई सेम जिदा आप एज मनी सी। तो फिर उस तो बाद फिर सेम करांगे आपां अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन के अनुसार, पहली कंडीशन के अनुसार अपने को की है, आप कह सकते हैं भी जिहड़ा भी साडे कोले आपां जिहड़े अपना बैट है, ठीक है, एक बैट की कीमत कितनी है एक्स है, तो उन्होंने बैट कितने खरीदे ने 3 बैट खरीदे ने, तो अपने को की आ जाएगा 3x। तो हम दोहां की एज उन्होंने मिला के दसी हुई आपां कितनी है 3900। तो अपने को उन्होंने बॉल्स कितनी खरीदियां ने 6, तो 1 बॉल की कॉस्ट कितनी है 22, तो 6 बॉल की कितनी होएगी 6/22। तो अपने को की है देखो ये पहली इक्वेशन लगभग बन चुकी है, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट की है, नैक्सट के अपने को आ जाएगा फिर अकॉर्डिंग टू दी सैकेंड कंडीशन। सैकेंड कंडीशन की होयागा उन्होंने जस्ट एक जिहड़ा बैट है उन्होंने खरीदिया गा, तो उसकी कॉस्ट जस्ट x रह जाएगी, ठीक है। एंड बॉल्स 3 मोर बॉल्स, तो उन्होंने हो जाएगी 3/22। तो कुल रुपए का खर्च कितना आएगा 1300। तो यह सैकेंड जी इक्वेशन बन जाएगी। तो हुण फिर की है तुहाडे कोल ये जिहड़ियां 2 इक्वेशनस बन गई ने, हुण फिर सेम प्रोसैस होएगा, ठीक है। तुहाडे कोल इक्वेशनस आउणगियां, फिर तुसीं की है इदां 2 बॉक्स बनाओगे, ठीक है, उन्होंने एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करोगे एंड उस तो बाद फिर तुसीं उसनूं की है ग्राफिकल रूप दे विच दिखाओगे जिद्दां आपां पहले सम दे विच कीता सीगा। वो सारा कुछ तुसीं आसानी नाल कर लओगे। बट देखो मेन चीज़ है भी तुसीं जिहड़ी अपनी जिहड़ा आपां स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नूं समझना, ठीक है। तो उस तो बाद हुण आपां थर्ड सम करते हैं, बाकी मैं तुहाडे ते छड्ड दांगा, तुसीं खुद करोगे। देखो जिहड़ा थर्ड सम है वो की कहंदा गा the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on the day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो कहना कि है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स मतलब कि 2 किलो सेब की कॉस्ट एंड 1 kg ग्रेप्स भाव के अंगूर की कॉस्ट, ठीक है, वो कितनी है 160। तो हुण आपां की है फिर इत्ते ही मनांगे लैट बिल्कुल सेम बैट और बॉल वाला कुछ नहीं होएगा। लेट 1 kg एप्पल्स कॉस्ट इक्वल टू x, 1 kg grapes cost इक्वल टू बाई। तो फिर की हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन की कहती है उन्होंने किन्ने kg एप्पल लाए सी 2 kg मतलब कि 1 kg की कॉस्ट x है, 2 kg की हो जाएगी 2x प्लस उन्होंने ग्रेप्स किन्ने लाए थे 1 kg की कॉस्ट y ही रहेगी। टोटल उन्होंने रुपए किन्ने स्पेंड किए थे 160। सिर्फ टैक्स बुक से भी ध्यान रखना है 160। ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। हुण फिर की है अकॉर्डिंग टू डी सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन की है देखो फिर आप देखते हैं कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। 4 kg एप्पल्स भाव के 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स, ठीक है, इक्वल टू 300। ये अपने को जी इक्वेशन है सैकेंड बन गई है। तो स्टूडेंट्स हुण फिर तुसीं उही वर्क करना अपना जिहड़ा आपां पहले सवाल दे विच कीता सीगा। हुण तुसीं की है इन्हां दो ही जिहड़ियां इक्वेशनस बनियां ने अपने को 1 और 2 इन्हां दे विच की है एक्स या वाई दे विचों एक दी जिहड़ी वैल्यू पुटअप करोगे दूसरी दी वैल्यू कड्डोगे। वो वैल्यू तुसीं कोई भी पुटअप कर सकते हो, ठीक है।
ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾਗਾ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.1 ਹੈ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग।